is the first day of our class, so we will start from basic mathematics. Basic mathematics means we will start from factorization or from simple level. देखो see, I will explain some standard formulas. Either you know or don't know, it doesn't matter. मैं standard formula से start करूँगा, ठीक है? आपको आते हैं then well and good, और नहीं भी आते हैं then okay, you will understand. First one, a plus b whole square. What is the formula of a plus b whole square? Can anyone tell? Yes, Krishna. No? Okay. Yes, Varsha. मैं पूछूंगा जरूर. Yes, please tell me. A plus b whole square. Okay, Vidushi can tell. Sir, a plus b bracket a plus b into a plus b. It is not the correct one. A plus b whole square is equal to a square plus 2ab. A plus b square. Yes. So we can prove it. A plus b whole square is equal to a plus b multiplied by a plus b. So a into a, it is equal to a square. Then a into b, ab. Then b into a, ba. Then b into b, it is equal to b square. So what will come? It is equal to a square plus b square plus ab plus ba. ab and ba are same. So it will become twice of ab. So a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. I think everyone understand this. Okay? If yes, then raise your hand or thumbs up. Everyone, either raise your hand. Okay, Atulya, very good. A plus b whole square means a plus b into a plus b. Okay? Now next one, number 2. A minus b whole square. It is equal to a square plus b square minus 2ab. How it will come? Proof. It is a minus b whole square which is equal to a minus b into a minus b. Now first multiply a into a square, then a into b minus ab, then minus b into a minus ba, then minus b into minus b plus b square. So what will come? A square plus b square minus ab minus ba minus 2ab. So it will become a square plus b square minus 2ab. ये फार्मूले लिख लो ढंग से टिप्स पर, मतलब अपने घर की दीवार पे चिपका दो इसको नोट करके, आपको लर्न होने चाहिए, बड़ा बेसिक है. ओके, नोट इट डाउन. नाउ मूविंग अहेड, नंबर 3 फार्मूला. इट इज a square minus b square. It is equal to a minus b into a plus b. A square minus b square is equal to a minus b into a plus b. Now proof. We can use right hand side. Right hand side को आप use ले लो तो what will come? a minus b into a plus b. So a into a square. Then a into b, ab. Then b into a, ba. Then b into b, b square. So it is equal to a square. देखो ab plus का ab minus का cancel. So a square, sorry, minus b into plus b minus b square. So it will become a square minus b square. This one is a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. This one is third formula. यहां तक सबको सिंपली आते हैं. Fourth one, let's try a plus b plus c whole square. It is equal to a square plus b square plus c square plus twice of ab plus bc plus ca. ab plus bc plus ca. a square plus b square plus c square plus twice of ab plus bc plus ca. This one is the fourth formula. ये आपको प्रूव करना है अभी. ओके, फिनिश इट. और नहीं होगा देन आई विल प्रूव. Okay, let's try. Now I have to prove it. Number 4th. Fourth one, a plus b plus c का whole square. It can be written as a plus b plus c multiplied by a plus b plus c. So what we have to do? A into a square. Then a into b, ab. Then a into c, ac. Then b into a, ba. Then b into b, b square.
देन बी इंटू सी बी सी, एंड लास्ट वन सी को कर दो सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी बी सी, एंड सी इंटू सी सी स्क्वायर। मीन्स सबसे पहले ए को सबसे मल्टीप्लाई करा, देन बी को, एंड देन लास्ट में सी को। तो व्हाट विल कम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो ए बी एंड ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी, बी सी प्लस बी सी ट्वाइस ऑफ बी सी, सी ए प्लस सी ए ट्वाइस ऑफ सी ए। सो व्हाट विल कम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. This one is our answer. Done? Okay, note it down. Now fifth one, most important formula, a plus b whole cube, a plus b whole cube. Now see, the formula of a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. See कैसे, देखो सिंपल रूल है, प्रूफ a plus b whole cube can be written as a plus b into a plus b का स्क्वायर. ओके, सो a plus b का होल स्क्वायर अभी अभी आज फर्स्ट फार्मूला लिखा है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. क्लियर? अब करना क्या, पहले a को इनसे मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट विल कम, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, देन a इंटू 2ab, इट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b. अब b को मल्टीप्लाई करो सबसे, b इंटू ए स्क्वायर b, b इंटू बी स्क्वायर b क्यूब, b इंटू 2ab, b इंटू 2ab 2ab स्क्वायर. सो आया क्या, रिजल्ट क्या है, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ अस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b. सो इट विल बिकम 3a स्क्वायर b. और देखो इधर ए बी स्क्वायर, इधर 2ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर मिलकर के कितना हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर कितना हुआ, 1 प्लस 2 कितना होता है, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर. सो इट विल बिकम ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पर 3 कॉमन ले सकता हूं, ए कॉमन ले सकते हैं एंड बी आल्सो. सो 3ab को कॉमन लेते अंदर क्या रह गया, कॉमन लेने का मीनिंग क्या है, इससे डिवाइड करना है इसको. तो हुआ क्या, 3ab, ए स्क्वायर बी को डिवाइड करते ही इट विल बिकम a एंड हियर b. सो दिस वन इज अवर फार्मूला नंबर 5. a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. नाउ सी, यहां पर ही फार्मूला नंबर 6 भी वी कैन राइट. सो फार्मूला नंबर 6 इज, आपको ये फार्मूला मिला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. If I want to find the value of a cube plus b cube, what will come? ये जो इधर ऐड हो रहा है इस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, जो उधर प्लस हो रहा है इधर जाकर के क्या हो जाता है, माइनस. सो इट विल बिकम a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b. ये इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया. सो दिस वन इज नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 6. ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा, नोट इट डाउन. Now number 7. Seventh formula is a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. Let's try yourself. पहले आप लोग ट्राई करो, then I will prove. Now see, it's a proof. देखो अभी हमने 6th नंबर प्रूफ किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ए प्लस बी होल क्यूब ये अभी लिखा था 6 नंबर. यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी, सो वी कैन टेक इट कॉमन. जैसे आप ए प्लस बी को कॉमन लेते हो, देखो ए प्लस बी के क्यूब में से ए प्लस बी कॉमन आ गया, तो बचा क्या, a प्लस बी का स्क्वायर
and minus 3ab. So C, a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square minus 3ab. So what will come? a plus b into a square plus b square. 2ab में से 3ab माइनस हुआ, so what will come? 2ab minus 3ab. 2 minus 3 minus 1. So minus का ab plus b square. I think proved. So this one is one of the simplest formula. देखो अभी तक जो हमने फार्मूले किए हैं, we have done near about 7 formulas. First one is a plus b whole square. It is equal to a square plus b square plus 2ab. Second is a minus b whole square. It is equal to a square plus b square minus 2ab. Third is a square minus b square. It is equal to a minus b into a plus b. Fourth, a plus b plus c whole square. a square plus b square plus c square plus twice of ab plus bc plus ca. जब आपको टिप्स पर याद होंगे ना, तभी आप मैथ्स कर पाओगे. मैं आपसे फार्मूला पूछता हूं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. आप बोलते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अटक रहे हो, तो आपको टिप्स पर याद ही नहीं, आप क्वेश्चनों में अटके रहोगे. दैट्स वाई स्पीड स्लो हो जाती है स्टूडेंट की. अगर उसको फार्मूले याद नहीं है ना, तो उसकी स्पीड स्लो होगी ही होगी. सिमिलरली नेक्स्ट, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 फार्मूले हैं, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एंड नेक्स्ट वन a क्यूब प्लस बी क्यूब, इट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ आफ्टर दैट आई विल गिव यू 3 more formulas to prove. Number 8, 9 and 10. Eighth one, a minus b whole cube, it is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Next one is number 9, a cube minus b cube. ये तो बहुत सिंपल है, a minus b whole cube plus 3ab into a plus a minus b. And last one, number 10th, a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. आपको अब ये 3 प्रूव करने हैं, 8, 9 and 10. ओके, प्रूव इट. नाउ प्रूव करते हैं, जस्ट मैच इट. फर्स्ट वन, 8th वन, a minus b whole cube. It can be written as a minus b into a minus b का whole square. Like previous one, a minus b into a minus b का whole square is a square minus 2ab plus b square. अब क्या करना है, पहले a को सबसे मल्टीप्लाई करो, so it will become a cube minus 2a square b plus ab square. Then b को a square से मल्टीप्लाई करते ही it will become माइनस का a square b. Then b into 2ab, माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab square, एंड देन माइनस b इंटू a माइनस b क्यूब. तो क्या आया हमारे पास में, वी गेट a क्यूब माइनस b क्यूब. देखो 2a स्क्वायर b माइनस का a स्क्वायर b भी माइनस का, सो इट विल बिकम माइनस 3a स्क्वायर b. ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, इट विल बिकम 3ab स्क्वायर. ओके, सो नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab को आपने जैसे ही कॉमन लिया, व्हाट विल कम, a माइनस b. सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, इट विल बी आवर आंसर. प्रूफ नंबर 8. नाउ 9th वन, देखो अभी अभी प्रूव किया है, a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. तो अगर आप इसको इस साइड ले जाते हो, सो व्हाट विल कम, इट विल बिकम a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b. सो अवर नंबर 9th फार्मूला. ओके, नाउ लास्ट वन, 10th वन, a क्यूब माइनस b क्यूब 10th. इट कैन बी रिटन एज, ये लिखा हुआ a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी. फार्मूला लिखा है,
वी कैन यूज इट. ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी. कुछ कॉमन आ रहा है? ए माइनस बी. जैसे ए माइनस बी को कॉमन लिया, व्हाट विल कम? ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab. तो ये क्या आया? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फार्मूला प्लस 3ab. तो क्या आया रिजल्ट? इट विल बी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस ab प्लस बी स्क्वायर. अब देखो सीधी सी बात है, कईयों को ये समझ में नहीं आएगा. समवन विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. यू नो व्हाई? जिन्होंने पिछला रिवीजन ही नहीं किया, जिन्होंने अपने माइंड से इसको यूटिलाइज ही नहीं करा, 9th क्लास में स्टडी नहीं करी, उन्हें दिक्कतें आएंगी. और आनी भी चाहिए. अगर नहीं आए तो फिर पढ़ने का यूज ही क्या रहे? फिर क्यों 9th में पढ़े? ठीक है, नोट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट वन, फॉर्मूला नंबर 11. इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. लास्ट फार्मूला. यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ. आप खुद डिराइव करने की से ट्राई कर सकते हो. ठीक है, और इसमें 2 फार्मूले होते हैं. एक फार्मूला और भी है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर. ये 2 फार्मूले हैं. ऐसे करते हैं, फर्स्ट वन मैं प्रूफ करता हूं, सेकंड वन आप लोग खुद करोगे. ठीक है, सो नाउ सी प्रूफ. थोड़ा ध्यान से समझना. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. अभी कुछ नोट मत करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. अभी हमने एक फार्मूला प्रूफ किया था, यहां लिख देता हूं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. आई थिंक ये फार्मूला नंबर 6 होगा. जो मैंने प्रूफ करवाया उसमें फार्मूला नंबर 6 होगा ये. ठीक है, चेक कर लो अपने आप ही. तो देखो इसकी जगह पर मैं वो लिख सकता हूं. सो आई कैन राइट इट लाइक दैट, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एज इट इज. अंडरस्टैंड? जस्ट फार्मूला अप्लाई किया. नाउ सी, आपके पास में इन दोनों जगहों पर 3ab है, तो इन्हें पास में लिख लो और क्यूब वालों को पास में रख लो. a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc. क्लियर? अब वन मोर फार्मूला. अगर आपको याद हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वेट, तो देखो सी, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. आज ही फार्मूला नंबर 7 था. 6th फार्मूला ये था, 7th फार्मूला ये था. बस मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख दिए, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि 2 अलग अलग फार्मूले हैं. बाकी आप स्मॉल भी लिख सकते हो. तो अगर आप इस पर ध्यान दो, इसको मैं कैपिटल ए और इसको मैं कैपिटल बी अगर ट्रीट करता हूं, तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब बनेगा क्या? ए प्लस बी मीन्स, बहुत ध्यान से समझना, ए क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस सी. क्लियर? मतलब ये प्लस ये, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर. ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू बी मतलब ए प्लस बी इंटू सी, एंड लास्ट वन
बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन आ रहा है? 3ab, सो वी कैन टेक -3ab। सो जैसे 3ab को कॉमन लिया, व्हाट विल कम? a प्लस बी, एंड हियर -3ab कॉमन लेते ही प्लस सी। तो देखो इधर भी a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी, इसे थ्रू आउट कॉमन ले लो, यू विल गेट योर आंसर। अंदर क्या रह गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a प्लस बी इंटू सी, तो माइनस सी ए माइनस बी सी, और प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो बचा कौन? -3ab। देखो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से हमने हैवी चीजें स्टार्ट करी है। यू नो व्हाई? क्योंकि अब आपको फील होना चाहिए यू आर इन क्लास 10th, और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आप अगर आपने 9th वेस्ट करी है, अपनी 8th वेस्ट करी है, तो 10th मत वेस्ट करो। बोर्ड है, पूरी लाइफ बोर्ड की मार्कशीट तो जाएगी आपके साथ में, वो भले बर्थ की डेट देखने के लिए हो या कहीं पर भी हो, लेकिन यूटिलाइजेशन उसका हर जगह पर होता है। नाउ इट विल बिकम a प्लस बी प्लस सी, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab माइनस 3ab, तो माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। प्रूव्ड। फर्स्ट वन मैंने किया है, सेकंड वन आप लोग खुद प्रूव करोगे एट एनी हाउ, अदरवाइज मैं कल क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट रिजल्ट विल बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके हमने वन रिजल्ट तो वी हैव डन, इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक तो रिजल्ट हमारे पास में ये है जो हमने कल प्रूफ कर लिया था, एंड वन मोर रिजल्ट, इट इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। फर्स्ट प्रूफ कर लिया, सेकंड को प्रूफ करेंगे, ठीक है। नाउ सी प्रूफ, फोकस करना ऊपर बोर्ड की तरफ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc, इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किया है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, देखो इधर आंसर में 1/2, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दो और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ओके अब देखो 2 से आप इसे मल्टीप्लाई करो या नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, बात सेम रहेगी। सो वी कैन राइट इट लाइक दैट, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। ओके अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दैट, a प्लस बी प्लस सी, 2a स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर इज c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। तो देखो अगर अब आप इस पे ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, इट इज इक्वल टू b माइनस c का होल स्क्वायर। एंड लास्ट वन, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca,
इट इज c माइनस a का होल स्क्वायर. So our result is proved. 1/2 a plus b plus c into a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square. This one is our second result. Okay, note it down. After this अब एक और बेसिक टॉपिक करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना. आइदर पॉइंट्स में निकालना हो या विदाउट पॉइंट निकालना हो, स्क्वायर रूट की अब हम बात करते हैं. जैसे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हेडिंग डाल दो स्क्वायर रूट. बेसिक्स बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको पहले तैयार करते हैं, उसके बाद में आप मैथ्स में क्वेश्चन कर पाओगे. देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनके स्क्वायर रूट्स की. तो फर्स्ट वन आपको याद रखना पड़ेगा, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उससे पहले आपको यह बेसिक याद होना चाहिए. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81. ये आपको बेसिक्स लर्न होना चाहिए. अब आपके पास से कोई भी नंबर है, अगर हमसे उसका अंडर रूट निकालने के लिए पूछते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा है, जैसे मैं फर्स्ट नंबर ले रहा हूं 441 और इसका मुझसे कहा व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ दिस नंबर. तो वैसे हमें इसका आंसर चाहे बताओ, लेकिन अब यहां पर मेथड से करेंगे. तो आपको करना क्या होगा, परमानेंटली लर्न रखना, कोई भी नंबर हो जिसका अंडर रूट निकालना हो, इधर पॉइंट होता है एंड में, तो आप यहां से पेयरिंग स्टार्ट करो. पेयरिंग मीन्स 2 2 के पेयर बनाओ. तो होगा क्या, ये एक सिंगल पेयर बनेगा एंड ये नंबर सिंगल रह जाएगा क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं था, नहीं तो यहां पर भी हम पेयर बना लेते. सो व्हाट वी हैव टू डू, आप सबसे पहले 441 लो और क्या करो, देखो ये पेयर बन गया, ये सिंगल ही रह गया. अब वो नंबर देखो जिसका स्क्वायर या तो 4 आ जाए, और अगर 4 नहीं आ सकता देन जस्ट 4 से स्मॉलर नंबर हो. तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वी कैन टेक 2 हियर, 2 इंटू 2 4. और जो भी इधर नंबर आए, यहां पर जो नंबर लिख रहे हैं हम उसको इसमें ऐड कर देंगे. सो 2 + 2 = 4. Subtract it, 4 - 4 = 0 एंड यहां से पूरा पेयर उतार लो 41. पेयर पूरा एक साथ ही आएगा. क्लियर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 4 इधर आ चुका है. अब सुनो, 4 के आगे कौन सा नंबर लगाएं जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 41 आ जाए, नहीं तो इससे स्मॉल आए. तो हमने देखा अगर मैं 1 लिखता हूं ना तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा और 1 ही मुझे यहां लिखना है. तो 41 × 1 41. अगर मैं 2 लिखता तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 42 2 × 2 = 84 हो जाता, तो जो ग्रेटर होता. तो 41 - 41 0, इधर 41 + 1 42. तो याद रखना ये जो नंबर आ रहा है ना, यहां वाला नंबर हमेशा इसका डबल होगा. तो अवर अंडर रूट ऑफ 441 इज 21. दिस वन इज अवर आंसर. आई थिंक समझ में आ गया होगा. ओके, नोट इट डाउन. Yes. Now one more. Next one is wait. Yes, 6084. 6084. इसका अंडर रूट हमें फाइंड करना है. We have to find the square root of 6084. So what we have to do? 6084. पेयरिंग करनी है इस साइड से, दिस वन एंड दिस वन. अब देखो पेयर को पूरे को चेक करना है. 60 किस नंबर का स्क्वायर 60 आ रहा है, तो 7 का 8 का स्क्वायर करेंगे, इट विल बी ग्रेटर देन 6. तो 60 से ग्रेटर है तो ये नहीं ले सकते, सो वी हैव टू टेक ओनली 7. तो 7 7 49 और 7 में ये 7 ही ऐड करना है, तो 7 + 7 14. अब देखो 60 - 49 इट विल बी 11 एंड ये पूरा पेयर उतार लो. अब आपको यह देखना है कि 14 के आगे कौन सा नंबर लगाऊं जिससे मल्टीप्लाई करते ही या तो मेरा 1184 आ जाए और या फिर उससे नहीं तो उससे स्मॉल आ जाए. तो हमने देखा अगर मैं 14 के आगे 8 लगाता हूं तो 8 से ही मल्टीप्लाई करूंगा. 8 8 = 64, 6 कैरी, 14 × 8
आई थिंक 102, 112 एंड प्लस 6 118। तो हुआ क्या, आपको 8 यहां लेना पड़ेगा, 8 हियर एंड 8 हियर। सो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 3 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 3 11। तो सब्ट्रैक्ट करते इट विल बिकम 0। तो आया क्या, 148 प्लस 8 156। तो देखो ये 78 का हमेशा डबल होगा। सो अवर आंसर इज 78। तो कभी भी पूछे √6084, इट विल बी 78। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94249। आपको इसका अंडर रूट लेना है, मीन्स 94,249। तो देखो इट इज ए 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। तो आप क्या करो, जब भी ऑड हो ना डिजिट, तो उसमें 1 ऐड कर दो, 6 का हाफ कर लो, 6 का हाफ मतलब 3। इसका आंसर 3 डिजिट का आएगा। और यूं नहीं समझ में आए तो ये कर लो, यहां से पेयरिंग करके देख लेना, 1 2 3 पेयर बन रहे, तो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो अब हुआ क्या, 94249 पेयरिंग करी। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले देखो, अब देखो 3 लाइंस ले ली, 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 डिजिट का आंसर आएगा। सबसे पहले देखो 9 किसका स्क्वायर करने पर आ रहा है, 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 में 3 ऐड किया, इट विल बिकम 6। 9 माइनस 9 0। अब पूरा नोट किया तो 42। 0 लिखो नया लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं 6 के आगे कौन सा नंबर लगाऊं, जिस नंबर को से ही मल्टीप्लाई करने पर या तो 42 आए या उससे स्मॉल आए। अगर मैंने इधर 1 भी लिख दिया ना, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 61 इंटू 1 61 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 42। तो व्हाट वी हैव टू डू, इसके आगे 0 लगाओ और 0 से ही मल्टीप्लाई करो। तो 60 इंटू 0 0, 42 माइनस 0 42, ये पेयर कंप्लीट कर लो। 60 में 0 ऐड करते हैं 60, इट विल नॉट चेंज। अब 60 है तो आगे कौन सा नंबर लगाएं कि 4249 आ जाए। तो अगर आप ध्यान दो, 6 से 42 7 टाइम डिवाइड होता है, तो आइडिया लग जाता है कि 7 हो सकता है। तो हमने क्या करा, इधर 7 पुट कर दिया, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42। तो सब्ट्रैक्ट करते क्या आ गया, 0, और 607 में 7 ऐड करते 614। सो अवर आंसर 307 का जस्ट डबल है। सो अवर आंसर इज 307। दिस वन इज अवर आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर्स। मैं आपको देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। 777,924। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लेट्स ट्राई। ठीक है, आप ट्राई करो। चलो आंसर मैच कर लो। देखो जब आपने पेयरिंग स्टार्ट करी तो 777,924 पेयरिंग इज लाइक दैट। सबसे पहले वो नंबर चेक करो जिसका स्क्वायर या तो 77 हो जाता, नहीं तो 77 से स्मॉलर होता। सो इट इज 64। सो वी कैन राइट 8 8 64 एंड 8 में 8 को ही ऐड करना है, तो 8 + 8 16। 77 में से 64 माइनस हुए आई थिंक 13 एंड पूरा 79 एज इट इज। नाउ 16 161379। अब आप देखते हो कि यहां पर कौन सा नंबर लगाऊं जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो ये आ जाए, नहीं तो इससे स्मॉलर आए। तो आप क्या करो, इधर प्रैक्टिस से हमें पता चल चुका है कि 8 अप्लाई करने पर 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 6 आई थिंक 48 प्लस 6 54, 5 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 5 13। इससे स्मॉलर नंबर आया। 9 में से 4 गए 5, 7 में से 4 माइनस किए 3, 24 एज इट इज। अब देखो इस 168 में यही 8 ऐड किया, सो इट विल बिकम 176। अब इसके आगे कौन सा नंबर लगा, तो देखो 17 2 जा 34, नियर अबाउट 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो।
क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 कैरी 17, 0। सो अवर आंसर इज 882। तो ये आपके पास में 3 डिजिट का भी 6 डिजिट का स्क्वायर रूट किया तो वो भी आ गया हमारे पास। ओके, नोट इट डाउन। यस, करो एक और लास्ट। 874225, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, लेट्स ट्राई, ध्यान से करना बस। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। देखो बहुत सारी चीजें तो इससे ही पता चल जाती है कि लास्ट डिजिट क्या आएगी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो। लास्ट में 25 है, लास्ट में 5 है, तो इट में श्योर है जो स्क्वायरिंग करोगे उसके एंड में 5 होगा। तो देखो अब इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। 874225, 25 पेयरिंग 42, 87। सो फर्स्ट स्टेप इज, आप ये पेयर देखो 87, तो 81 लेना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव टू टेक, 9 9 जा 81, और ऐड करना है 9, तो 9 + 9 18। इधर माइनस करते हैं 6 42। अब देखो 18 है इधर, 642 है, तो आगे जो भी नंबर लिखूंगा वो मुझे चेक कर दे। तो यहां देखो 18 इधर 64, 18 3 जा 54, तो 3 से करेंगे तो इससे स्मॉलर नंबर आएगा, 4 से करते ही ग्रेटर, तो 3 से ट्राई करो। 3 3 जा 9, 18 3 जा 54 आ गया। 12 में से 9 माइनस हुए, अच्छा इसमें ये 3 ही ऐड करना है, तो इट विल बिकम 186। 12 में से 9 माइनस हुए 3, इधर आ गए 13 में से 4 माइनस हुए 9, नाउ कैरी 25। 186, इधर 9325, तो प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट में 5 होगा क्योंकि एंड में 5 है। तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करा, (9325), so it is cancelled. So our answer is 935, और ये नंबर इसका डबल होगा 935 को, आप ऐड करके देख लो, इट विल बिकम 1870, डबल ऑफ 935। ओके, नोट इट डाउन। अब उन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जो डेसिमल नंबर्स होंगे, जिसमें पॉइंटों में आंसर आएगा। मींस दोज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, कोई नंबर ले लिया हमने, हमारे से पूछा गया 495 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब पॉइंटों में आएगा तो पॉइंटों में निकालना है, अप टू पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको पेयरिंग वाइज लिखना पड़ेगा। 495.0000। अब देखो कैसे, जब भी पॉइंट वाला नंबर ले ले तो इसके 2 साइड में पेयरिंग की जाती है, एरो इस तरफ एंड एरो इस तरफ, मतलब यहां पर पेयरिंग ऐसे होगी, ये पेयर देन इधर पेयर, बैक में पेयर, ये सिंगल है तो सिंगल ही। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट टेक फर्स्ट नंबर 4। तो किसका स्क्वायर 4 है, इट इज 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो 4 - 4, 2 + 2 कर दो 4, 4 - 4 0। सो व्हाट वी हैव टू डू, 95 उतार दो यहां पर। अब 4 के आगे क्या लगाऊं कि मुझे या तो 95 मिले, मतलब अगर मैंने 4 के आगे 1 लगा दिया तो 41 × 1 41 ही होगा। 2 लगाता हूं तो 42 × 2 इट विल बी 84, और अगर 3 लगा दिया तो इससे ग्रेटर नंबर आ जाएगा। तो इसलिए आप नेक्स्ट नंबर नहीं ले सकते, तो आपको क्या लेना पड़ा, 2। सब्ट्रैक्ट करते ही इट विल बिकम 11। नाउ सी, पॉइंट के आगे वाले दोनों नंबर उतार लो। जैसे ही पॉइंट के आगे से पेयर उतारा, आपके पास यहां पर पॉइंट लग जाएगा। हमेशा रूल याद रखना, प्रोसेस सेम रहेगा, बस इधर पॉइंट जैसे ही आएगा उसके आगे से पेयर में नंबर उतरेंगे। कभी ऐसा नहीं कि 1 नंबर इसका आ गया 1 नंबर इसका आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा पेयर में ही नंबर आएंगे। ओके, सो नाउ 1100, 42 में 2 ऐड किया, इट विल बिकम 44। नाउ सी, यहां पर 44 इधर 1100। अगर मैं 3 लगाता हूं तो 3 4 जा 12, इससे ग्रेटर नंबर आ जाएगा। तो क्या करना होगा मुझे, अगेन वी हैव टू अप्लाई 2। जैसे 2 लगाया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 444। 10 में से 4 माइनस हुए 6, इधर आ गया 9, 9 में से 8 माइनस हुए 1, इधर आ गया 10, 10 में से 8 माइनस हुए 2, 216।
अब इस पेयर को फिर उतार लो, इधर 444 है, इधर 21600 है, तो 4 5 20 होता है, तो नियर अबाउट 5 आना चाहिए। हालांकि 5 भी ग्रेटर नंबर है, तो हम इधर भी 4 ले लेते हैं, क्योंकि 5 से लेंगे तो श्योर है ग्रेटर आएगा। जैसे ही 4 लिया, 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 कैरी 17 हो गया, फिर 4 4 जा 16 1 कैरी 17 हो गया, अगेन 4 4 16 17, ये हमारे पास है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करके लिखो या ना लिखो, डजंट मैटर, क्योंकि पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट तक आंसर फाइंड करना है। सो आवर आंसर इज 22.24। प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस सेम ही रहेगा, जैसे पहले था वैसा ही रहा है, बस सिर्फ हो गया कि इधर पॉइंट आने के कारण से हमने आगे वाले नंबर्स को भी पेयर में नोट कर लिया। ठीक है, नोट इट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 592.123, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट का आंसर चाहिए मुझे। जो स्क्वायर रूट निकालो वो 2 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर पेयर बन नहीं रहा, ये है, तो एक पेयर बनाने के लिए एक सिंगल जीरो लगा दो। अब आप वही प्रोसेस अप्लाई करो जैसा पहले हम सिंपल स्क्वायर रूट में कर रहे थे। लेट्स ट्राई। देखो हुआ क्या, 592.123, आप जीरो और लगा लो ताकि पेयर बन सके। देखो 4 डिजिट, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट आएगी, तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 लाइन्स ले ली। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4, तो 2 + 2 4, 5 में से 4 माइनस हुए 1, 92 एज इट इज। अब 4 के आगे कौन सा नंबर लूं? अगर देखो मैंने 4 लेता हूं तो 4 4 जा 16, 6 4 4 जा 16 एंड 1 7, तो इससे स्मॉलर आएगा। 5 लूंगा तो ग्रेटर हो जाएगा, तो हमने 4 ले लिया, तो 24। 12 में से 6 माइनस हुए 6 और 8 में से 7 माइनस हुए 1, नाउ पेयर। अब जैसे ही पॉइंट के आगे वाला नंबर लिया, वी हैव टू टेक पॉइंट हियर, 44 + 4 इज 48। देखो 4 से 16 कब आएगा? जब आप किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से, लेकिन 8 है तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 एंड 2 14, 12 में से 9 माइनस हुए 3, और इधर 11 में से 10 में से 4 माइनस हुए 6, 5 में से 4 माइनस हुए 1, अगेन पेयर, और यहां पर आ गया 486। अब देखो फिर से 16 है तो 4 मत कर देना, आपको किससे करना पड़ेगा? वापस से 3 से। तो अब जो भी नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कोई नंबर आ जाएगा, और हमें पॉइंट कर में जस्ट 2 डिजिट तक फाइंड करना है। सो आवर आंसर इज 24.33। अच्छा, इसे 24.33 मत बोलना, 24.33। जैसे 24.1 बोलो तो, और एक 24.01 बोलो, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो आपको थोड़ा स्टेटमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर इज 24.33। ओके, नोट इट डाउन।